Welcome back, everybody. This is our next video in our light series of class 10, chapter light, class 10 series. Till now, I think we have made around 6 to 7 classes, and in last class, we have covered about basics of refraction, that how refraction happens, what are basic angles, angle of refraction, what is refracted light, what is dense medium, and what is rare medium. We are going to shine light on dense and rare medium more in this lecture also. And we have also seen some terminology related to waves, like wavelength, frequency, speed, and uh, variation of speed of wave, especially light in different mediums, that how in vacuum it's maximum, that is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, and it goes on reducing, and minimum values goes to into solids. And for sound it's reverse, that in vacuum it's 0 and maximum velocity is in solids. After that, this was what we covered in our previous lecture or previous video. Now we are going to cover some more things about refraction, and I hope to complete this refraction topic in this video. So let's start for today. And before starting, I will urge you to, if you find these videos helpful and knowledgeful in your preparations and in your understanding, then I will urge you to hit that subscribe button, like button, and share button, so that more you share our videos, to more it reaches to the people who need it, because YouTube work by algorithm. More people share it, more people to it reaches, and to more people it reaches, it will be helpful for more peoples. So I will urge you to like, share, and subscribe. And with this, we will move to our topics, today's topic, and let's start. So our today's topic is refractive index. Before starting refractive index, let me do some brief about what we have discussed in our previous video. When we was studying refraction, then there was a material. We are taking a glass slab, and outside is air. Now light is incident on glass slab, and the point where the light incident is a part of term known as boundary. सो जो आपको ये ब्लू पार्ट दिख रहा है, इसको बोला जाता है बाउंड्री. और बाउंड्री कहाँ बनता है? दो मीडियम्स के बीच में बनता है. जहां भी दो अलग अलग टाइप के मीडियम्स मीट होते हैं, वहां पे बाउंड्री बनता है. सो अगर यहाँ पे बाउंड्री नहीं होता, तो जो ये रेड कलर लाइट है, ये इसका नॉर्मल पाथ होता, जो हमने ये ग्लास स्लैब के अंदर भी रेड कलर से शो किया हुआ, ये इसका नॉर्मल पाथ होना चाहिए था. बट होता क्या है, जो लाइट है वो बेंड हो जाती है किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ. मींस अपने एक्चुअल पाथ से, जो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, वो उसकी तरफ बेंड हो जाती है, और ये डिफरेंट पाथ फॉलो करती है जो हमने ब्लू से शो किया हुआ है. और उसके बाद जब ये फिर से बाउंड्री पे स्ट्राइक करती है, बिकॉज यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होता है. और अब इसको ब्लू वाला पाथ फॉलो करना चाहिए था फर्दर आगे, बट ये अपने पाथ को चेंज कर लेती है और फिर एक अलग से सेपरेट रेड पाथ फॉलो करती है. और इस टाइम पे ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर जाती है. पहले ये नॉर्मल के पास आई थी, जो ब्लैक कलर की लाइन है ये नॉर्मल डिनोट करती है. तो पहले तो ये इसके पास आई थी, और इस टाइम पे ये इससे दूर जाती है. एंड जो ये बोथ रेड कलर्स लाइंस हैं, ये एक दूसरे के
पैरेलल होती हैं ऑलवेज. सो दिस इज बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि ऐसा होता क्यों है, वाई बेंडिंग, कि ये ऐसे इस तरफ बेंड क्यों हो जाती. तो जब हमने आपको बताया था हमारे इस चैप्टर की सीरीज जब हमने स्टार्ट की थी, तो जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट वाई लाइट बेंड्स. व्हेन चेंज ऑफ मीडियम हैपन्स. सो हम आपको ऑलरेडी टोल्ड कर बता चुके हैं दैट लाइट इज ए वेव, और वो भी किस टाइप की. लाइट क्या है, एक वेव है. और वेव किस टाइप की है, ट्रांसवर्स इन नेचर. ट्रांसवर्स नेचर की वेव है. यहां पे ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं जो, या साइकिल्स होती हैं, या ओसिलेशंस होती हैं. वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव. और हमने आपको ये भी कवर करवाया था कि जो लाइट है वो दो टाइप की फील्ड से बनती है. फर्स्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड होती है मैग्नेटिक फील्ड. जो हमें दिखाई देता है वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, और इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ कंसीडर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही करेंगे. जो हमने इसकी एक बेसिक वर्किंग है वो आपको हमारी फर्स्ट क्लास में समझाई थी, और वो हम आपको यहाँ पे उसमें हमने आपको फील्ड भी बना के दिखाई थी कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं. और लाइक अगर ये वेव की डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो समथिंग लाइक ऐसे होगी, जेड डायरेक्शन में. और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो समथिंग लाइक दिस होगी. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाइट डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, और जो वेव वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है. ओके. तो अभी आपको अगर आपको ये समझना है कि लाइट ऐसे बेंड की होती है, तो हम सिर्फ क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, मैग्नेटिक को नहीं लेते, बिकॉज उसको आप 3D में रिप्रेजेंट कर पाना इतना इजी नहीं होता, एटलीस्ट बोर्ड 2D पेपर पे. तो हम सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिंगल फील्ड लेके आपको समझाएंगे कि कैसे लाइट बेंड होती. तो कंसीडर कीजिए, पहले हमारे पास एक ग्लास स्लैब है. सपोज ये ग्लास स्लैब है. अब इसके ऊपर एक लाइट आती है जो यहां पे आके स्ट्राइक करती है. ठीक है, और ये इसका नॉर्मल पाथ होता अगर ये बेंड नहीं होती. और साथ में हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं कि ये लाइट के लिए नॉर्मल है. अभी हम, ये तो लाइट की डायरेक्शन है. हमने जैसे ऊपर सीखा कि लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होती हैं, लाइक दिस, कि अगर ये डायरेक्शन है लाइट की तो वाइब्रेशंस ऐसे होंगी, इसके परपेंडिकुलर. ओके.
अब अगर हम इसको रोटेट कर दें, मीन्स अगर ये ऐसे होती, अगर लाइट ऐसे है तो वाइब्रेशंस कैसे होंगी, ऐसे होंगी। तो यहां पे भी वाइब्रेशंस ऐसे ही होंगी। तो हम क्या करते हैं, एक वाइब्रेशन लेके चलते हैं। ये सपोज कीजिए हमारे पास लाइट की एक वाइब्रेशन है और साथ में हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में लोड करते हैं सो दैट आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाए। तो हमारे पास अभी ये, हम इसको दो पार्ट में, प्लॉट भी दो पार्ट में करते हैं। फर्स्ट, जो हमारा क्रस्ट है हम उसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हमारा ट्रफ है हम उसको रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब ये नीचे की तरफ आएगा तो पहले जो रेड पार्ट है पहले वो ग्लास को हिट करेगा। तो सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज स्लैब, दिस इज आवर लाइट, ये हमारी लाइट हो गई। और पहले क्या हिट करता है, जो रेड वाला पार्ट है वो पहले यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे नॉर्मल और लाइट और ग्लास स्लैब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो दिस इज आवर नॉर्मल पॉइंट। तो पहले रेड पॉइंट यहां पे पहुंचता है। यहां पे पहले रेड पहुंचता है और ग्रीन अभी ऊपर है। पहले ये दोनों पास में आ रहे थे इस पॉइंट के, अभी इस पॉइंट पे रेड हिस्सा जो रेड पार्ट है वेव का वो पहुंच गया है और अभी ब्लू पार्ट को, जो ग्रीन पार्ट है उसको पहुंचना बाकी है। तो जब रेड यहां पे पहुंचता है तो आपको पता है कि क्या होगा, कि जो रेड वाला पार्ट है जैसे ही ग्लास के अंदर जाएगा, और ग्लास के अंदर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कम है। वी नो we know that speed of light in glass क्या है, लेस देन है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो अभी जो ये वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ग्लास के अंदर, और उसी टाइम पे जो ग्रीन वाला पार्ट है वो अभी एयर में है तो उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ग्लास स्लैब, this is light, this is normal, और जो भी रेड वाला पार्ट है वो स्मॉल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाएगा बिकॉज अंदर जो स्पीड है वो कम है। सो वो थोड़ा सा ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, जबकि ग्रीन वाला पार्ट ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा क्योंकि वहां पे स्पीड ज्यादा है। तो ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे अब पहुंच चुका होगा। अभी वेव कुछ ऐसे हो गई है, रेड वाला पार्ट थोड़ा ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया है और ग्रीन वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है। तो आप इससे ये एनालॉजी लगा सकते हो कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी का फ्रंट है और ये गाड़ी के दो टायर हैं। अब आप क्या करते हो
एक टायर पे गाड़ी के एक टायर को आप स्लो कर देते हो। सपोज कीजिए आपने इस टायर को स्लो कर दिया, तो जैसे ही ये टायर स्लो हो जाएगा तो जो आपका दूसरे वाला टायर है वो तो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी टर्न हो जाएगी। कैसे? ऐसे, इस तरफ। जिस साइड आप ब्रेक लगाओगे, अगर आप एक सिंगल टायर पे ब्रेक लगाते हो तो उस साइड के टायर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जो दूसरा टायर है वो नॉर्मल स्पीड से चलता रहेगा, तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, इस टायर के अराउंड टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी गाड़ी ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पे होता है कि जो रेड वाला है उसको आप ये समझिए कि उस टायर पे ब्रेक लग गया है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट है वो इस तरफ, जो रेड वाला है इसके एक्सिस पे टर्न होना स्टार्ट हो जाती है, और जो लाइट का फाइनल वेव बन जाती है, फाइनल वेव कुछ ऐसे बन जाती है। इफ दिस इज ग्लास स्लैब, ये आपकी नॉर्मल लाइट थी, ये लाइट का नॉर्मल है। नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि जो आपके रेड और ग्रीन पार्ट हैं उनको यहां पे होना चाहिए था, ऐसे रेड पार्ट को होना चाहिए था और ऐसे ग्रीन पार्ट को होना चाहिए था। बट बिकॉज स्टार्टिंग में जब एंट्री होती है तो रेड पार्ट पे सडनली ब्रेक लगते हैं, उसकी वजह से जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा टर्न हो जाती है, और जो लाइट है वो ऐसे एक पाथ फॉलो करती है, और अब यहां पे आपके रेड और ग्रीन होते हैं। यहां पे ऐसे आ जाता है रेड, ये पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है बिकॉज हम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए इसको नीचे दिखा रहे हैं, और यहां पे आ जाता है ऐसे ग्रीन पार्ट। सो ऐसे आपकी लाइट है जो वो बेंड होती है। और सिमिलर होता है जब लाइट इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है, जब लाइट यहां पे आएगी तो उस केस में भी ऐसा ही होता है। सो ये जस्ट एक बेसिक एक्सप्लेनेशन थी आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि लाइट बेंड कैसे होती है। जो एक्चुअल मींस जो डिटेल डेफिनेशन है इट इज क्वाइट यू कैन से थ्योरेटिकल, एंड वो अभी आपके पास एज सच उसकी कोई नीड भी नहीं है कि दैट व्हाई इट हैपन्स। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप और डिटेल में पढ़ोगे कि जो हमने अभी आपको दिखाया ये जस्ट एक बेसिक एग्जांपल है, कि जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए, डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए ये एक एग्जांपल है जो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि लाइट बेंड क्यों होती है। तो अब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं, आगे जाते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है वो कवर करते हैं। सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या डिफाइन करता है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिफ्रैक्ट लाइट। और रिफ्रैक्ट क्या होता है, मींस बेंड। कोई मटेरियल के पास कितनी एबिलिटी है कि वो लाइट को कितना बेंड कर सकता है, वो किससे पता चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। एंड इसकी यूनिट, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल इज म्यू, और कभी कभी एन भी यूज कर लिया जाता है। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें एन सिंबल यूज किया गया है।
एंड रिगार्डिंग यूनिट, तो इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ये क्या है, ये एक रेशियो है सेम टाइप की यूनिट क्वांटिटीज का। तो जब आप सेम चीज टाइप की चीजों को डिवाइड करते हो, जैसे आप डिस्टेंस से डिस्टेंस को डिवाइड करोगे, तो जो मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, आपके पास एक नंबर बच जाता है। लाइक अगर आप 5 मीटर को 2 मीटर से डिवाइड करते हो तो आपके पास 2.5 आएगा, और उसकी कोई यूनिट नहीं है, वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। नाउ कमिंग टू फॉर्मूला। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये हमेशा कंपैरिजन में मेजर किया जाता है कि उसके मुकाबले आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यहां पे आप इसको, जो ये सबस्क्रिप्ट्स हैं, इनको ध्यान रखना है हमेशा, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन बी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए। और ये ए और बी क्या है? दोनों ये दोनों क्या है? मटेरियल्स, जैसे कि वाटर, ग्लास, एयर। ये ए और बी ऐसे डिनोट होते हैं कि आप ऐसे बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय एयर। तो अगर आप यहां से लिखें ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका मीनिंग होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इस फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर यही आपको वाटर और ग्लास में करना पड़ जाए, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या होता है? ये आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो उसको ऊपर रखा जाता है, और जिसका मेजर कर रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी स्पीड को नीचे रखा जाता है। नाउ एक टर्म आती है इसके अंदर, ये अब तक क्या था? ये सभी क्या था? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। तो इसी में जब हम एयर के रिस्पेक्ट में मेजर करें, व्हेन वी मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with respect to, not air, vacuum, then it is called absolute refractive index। जैसे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एन एयर वैक्यूम। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और आपको पता है
कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। तो अगर आप अपने टेबल्स देखोगे, अभी हम आपको थोड़ा आगे शो करेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज किस किस के लिए क्या है, कि एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है वो लगभग कितना आती है, 1.003 समथिंग ये वैल्यू आती है, कि ऑलमोस्ट सेम है दोनों के अंदर, स्पीड्स स्लाइट वेरिएशन है। इसलिए कभी कभी जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया जाता है तो लोग उसको वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेने की जगह पे एयर के रिस्पेक्ट में भी मेजर कर लेते हैं, बिकॉज जो एयर और वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अभी हम आपको एक टेबल दिखाते हैं जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यूज शो की गई है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के। सो दिस इज द टेबल जहां पे कुछ मटेरियल्स के जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनकी वैल्यूज शो की गई है। लाइक जो एयर है दैट इज 1.003, जो वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1, वैक्यूम का सबसे कम है, उससे ज्यादा एयर का है, देन आइस, आइस का थोड़ा कम है, वाटर आता है, फिर अल्कोहल, केरोसिन ऑयल, ग्लास 1.52, डेंस फ्लिंट ग्लास 1.65। सो सेम मटेरियल के भी, जैसे यहाँ पे एक क्राउन ग्लास है, एक फ्लिंट ग्लास है, इन दोनों का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा डिफरेंस है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि उस मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। और हमें जब भी बात करनी है हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी है। तो सपोज कीजिए आपको ऐसा मेजर करना पड़ सकता है कि आपको दो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हो, जैसे कि आपको दे दिया गया हो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.31 एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52। तो आपको ये बताना है कि लाइट किसके अंदर ज्यादा बेंड होगी, तो किसके अंदर होगी, ग्लास के अंदर। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, more is the bending of light। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे। अभी बताएंगे आपको कि कौन कौन से टाइप के मटेरियल होते हैं ऑन बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो on basis of refractive index we can classify materials relatively, इसका मीनिंग आपको बताते हैं अभी, into two categories। पहली होती है ऑप्टिकली रेयर मटेरियल और सेकंड होती है ऑप्टिकली डेंस मटेरियल। और ये रिलेटिव क्लासिफिकेशन है, मींस जैसे सपोज कीजिए क्लास के अंदर 3 बच्चे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एक और ले लेते हैं फोर्थ भी, और ये फोर्थ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये फर्स्ट, ये पहले नंबर का है,
पहले नंबर का चाइल्ड है और सेकंड नंबर का चाइल्ड है, इन दोनों में टॉलर कौन है? तो आप यहां से देख के आइडिया लगा के बता सकते हो कि यस सेकंड इज टॉलर, फर्स्ट इज स्मॉलर। बट अगर सेकंड और थर्ड में पूछा जाए तो पहले सेकंड टॉलर था, बट अगर सेकंड और थर्ड में पूछा जाएगा तो थर्ड वन टॉलर हो जाएगा, सेकंड स्मॉलर हो जाएगा। और अगर थर्ड और फोर्थ में पूछा जाए तो फोर्थ टॉलर होगा और थर्ड स्मॉलर बन जाएगा। तो ये जो ऑप्टिकली रेयर मटेरियल है और ऑप्टिकली डेंस मटेरियल है, ये भी ऐसे ही होता है, इनका क्लासिफिकेशन भी। कि सपोज कीजिए आपके पास दो मटेरियल दिए गए हैं, पहला है ग्लास और दूसरा है वाटर। अब जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हम ऊपर टेबल से देखें, इट इज 1.52 और वाटर का 1.33। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है और जो वाटर है इट इज 1.33। और हमने देखो यहाँ पे एक टर्म छोड़ दी। क्या छोड़ दी? जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे थे तो हम वहां पे दो टर्म लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। हम ऐसे लिखते थे, एन ए बी लिखते थे, हम दो टर्म्स लिखते थे। बट जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो एक टर्म होती है वैक्यूम, और वैक्यूम को नॉर्मली लिखा नहीं जाता। ये जो एन एयर ऑफ वैक्यूम है, इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? एन ऑफ एयर। जो एन ऑफ एयर है, इसका मीनिंग यही होगा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट से मेजर किया गया है। सो यहाँ पे जब हमने लिखा है एन ग्लास, तो ये इसका मीनिंग है एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। एन वाटर का मीनिंग है एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो ग्लास है वो क्या है? ऑप्टिकली डेंस मटेरियल। और जितना ज्यादा डेंस मटेरियल होगा वो उतना लाइट को ज्यादा बेंड करेगा। और यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली रेयर मटेरियल, ये लाइट को कम बेंड करेगा। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी देखिए, अभी ग्लास ऑप्टिकली डेंस था, हम क्या लेते हैं? रॉक सॉल्ट और ग्लास ले लेते हैं। रॉक सॉल्ट का 1.54 है और क्राउन ग्लास 1.52। तो अगर हम ले लेते हैं रॉक सॉल्ट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 और जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है। तो इस सिनेरियो में जो रॉक सॉल्ट है वो हो जाएगा ऑप्टिकली डेंस मटेरियल। और मटेरियल की जगह कभी कभी मीडियम भी लिख दिया जाता है। और जो ग्लास होगा वो हो जाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ऐसे आप वैल्यूज को कंपेयर करके ऑप्टिकली डेंस और रेयर मीडियम को क्लासिफाई कर सकते हो। तो रूल ऑफ थंब ये है दैट रिफ्रैक्शन के अंदर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम, मींस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वहां से जाती है कहां पे? टू ऑप्टिकली डेंस मटेरियल। कहां पे जा रही है? कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल में या मीडियम में जा रही है। तो हम मीडियम ही यूज करेंगे, हमने पहले मीडियम यूज किया है। देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर हम आपको इसका फिगर शो करें,
So let me copy this. So यहाँ पे लाइट कहाँ से जा रही है? लाइट ट्रैवल हो रही है एयर से, किसके अंदर? ग्लास के अंदर जाती है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, एंड जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.52 1.52। तो एयर हो गई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। एयर क्या है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और जो ग्लास है वो हो गया ऑप्टिकली डेंस मीडियम। तो जब ऐसा होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से लाइट ऑप्टिकली डेंस मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। यहाँ पे नॉर्मल ये ब्लैक लाइन है, लाइट को नॉर्मल ऐसे अगर सब कुछ सेम रहता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज नहीं आता, तो लाइट को रेड वाला पाथ फॉलो करना चाहिए था। बट उसने क्या किया, मीडियम चेंज होने की वजह से, और मीडियम भी कैसा मीडियम मिला उसको, पहले वो रेयर के अंदर थी, उसको फिर डेंस मीडियम मिल गया, तो वो जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड हो गई, ब्लैक लाइन की तरफ वो बेंड हो गई। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, दैट व्हेन लाइट travels from optically dense medium to optically rare medium, then it bends away from the normal। तो ये क्या, यहां पे कौन सी बात हो रही है कि आप हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कहां पे जा रहे हो? लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। यहां पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और एयर का कम है, तो जब लाइट ग्लास से एयर में जाती है तो उसको ये ब्लू वाला पाथ फॉलो करना चाहिए था, और जो ब्लैक लाइन है ये नॉर्मल शो करती है इस पॉइंट पे। तो जो लाइट है वो ब्लू पाथ फॉलो ना करते हुए वो इस नॉर्मल से और भी दूर हो जाती है और रेड वाला पाथ फॉलो करती है। सो जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, यहां पे लाइट क्या करती है? लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जाती है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और जब ऐसा होगा तो मतलब बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। आप कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जाओगे तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और जब आप ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाओगे तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is always ग्रेटर देन 1। वो हमेशा एक से ज्यादा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सपोज मटेरियल ए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पीड
of light in vacuum by speed of light in A। अभी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इससे ज्यादा कोई वैल्यू स्पीड की किसी भी मटेरियल में हो ही नहीं सकती। नीचे की वैल्यू हमेशा इससे कम ही रहेगी। इट्स लाइक कि अगर आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा, नीचे 5 से बड़ा आ ही नहीं सकता, मीन्स उससे ज्यादा स्पीड पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा पॉसिबल स्पीड है, उससे ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती, तो ऊपर वाली टर्म हमेशा ग्रेटर रहेगी, इसलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता ही रहता है। और इसके साथ हमने ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मटेरियल भी कवर कर लिए। ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल कौन से होंगे? जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ऑप्टिकली रेयर मटेरियल जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो अभी हम साथ में एक जो रिफ्रैक्शन है उसका एक लॉ भी कवर करेंगे। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के 2 लॉ कवर किए थे, ऐसे रिफ्रैक्शन के भी लॉ होते हैं। उसके अंदर एक स्नेल्स लॉ होता है, हम वो कवर करेंगे। ये एज सच आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट अगर आप ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां से इसके बेसिस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम आपको वो भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे, जस्ट फॉर्मूला बेसिस। सो स्नेल्स लॉ, और ये रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ होता है। इसके लिए हम सेम ग्राफ का हमारा जो फिगर है उसका यूज करेंगे, और अब यहां पे हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर NA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास NG। तो हम यहां पे साथ में लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव, let me move it slightly, एयर हो जाएगा NA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज NG। यहां पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम देते हैं X, इसको हम X नेम देते हैं। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पे उसको देते हैं Y। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको देते हैं Z, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको सपोज देते हैं हम M। ओके, तो हमारे एंगल्स हो गए X, Y, Z, M। तो जो स्नेल्स लॉ है वो क्या बोलता है, उसका फॉर्मूला क्या है? जिस मीडियम में आपने स्ट्राइक किया, जैसे यहां से हमने एयर में स्ट्राइक किया था, जो लाइट है वो एयर से आई थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल, कि कितने एंगल पे स्ट्राइक किया, दैट इज साइन X, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल जिसमें लाइट गई है, NG इंटू साइन ऑफ, सॉरी वेट, हमने ये एंगल गलत डिनोट कर दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये नहीं, ये होगा। हाँ, तो लेट मी क्लियर दिस। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, तो इसको हम Y बोलेंगे। जहां पे हमने प्रीवियस किया है तो वहां पे आप करेक्शन कर लीजिएगा,
हमसे ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि एंगल्स हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किए जाते हैं, ना कि ओरिजिनल लाइट के साथ। और सिमिलरली यहाँ पे भी लाइट हमसे ये, जब हमने फिगर को मूव किया तो लाइट मूव नहीं हुई हमारी, ये रेड कलर की, तो इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइट कुछ हाँ, ये एयर के केस में लाइट ऐसे आएगी, एंड यहाँ पे एंगल, जो एम एंगल है वो पूरा ये होगा। सो आपको जब भी एंगल मेजर करने हैं वो आपको ऑलवेज नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर करने हैं। आपको ये फिगर एक बार हम इसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर से बना के दिखा देंगे। सो एयर से लाइट आई तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ जो एंगल में एयर में बना है नॉर्मल के साथ, मल्टी इक्वल टू होगा जिस मीडियम के अंदर गई है, यानी ग्लास के अंदर गई है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रेन एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, दैट इज वाई। सो साइन ऑफ वाई। तो इस पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ का रिलेशन ये होगा। अगर हम नीचे वाले पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ का रिलेशन बनाए तो यहाँ पे जो लाइट है वो ग्लास से आ रही है, तो यानी कि एन जी, जो एंगल बना है नॉर्मल के साथ दैट इज जेड, तो साइन ऑफ जेड इक्वल्स टू हो जाएगा। अब जो लाइट है वो एयर के अंदर गई, मींस एन ऑफ एयर, और जो एंगल बना रही है लाइट नॉर्मल के साथ दैट इज एम, सो साइन ऑफ एम। तो ये ऐसे एंगल्स होंगे इसके अंदर, स्नेल्स लॉ के अंदर। हम एक बार आपको फिर से ये ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देते हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। सपोज कीजिए ग्लास स्लैब है, ये इनकमिंग लाइट है, लाइट यहां पे स्ट्राइक करती है, दिस इज नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया, और अभी लाइट बेंड हो जाती है, तो बेंड वाली लाइट को हम रेड से शो करते हैं, और लाइट बेंड होके ऐसे हो जाती है, ऐसे जाती है, यहां पे स्ट्राइक करती है, यहां पे फिर से नॉर्मल बनेगा। सो यहां पे ये नॉर्मल हो गया, और अब यहां से लाइट फिर से निकलेगी, और ये डेंस से रेयर है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो इसको हम ब्लू से शो कर देते हैं। तो लाइट ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे निकल गई। नाउ यहां पे है एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एन ए, और ये है ग्लास, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज एन जी। ये हमारा पहला एंगल होगा, इसको सपोज हम एक्स बोल देते हैं, इंसिडेंट रे का और नॉर्मल के बीच का एंगल। दूसरा एंगल होगा जो रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि रेड कलर वाली रे है, और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसको हमने वाई बोल दिया। फिर अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे बन जाती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे में, उसको हम जेड बोल देते हैं। और ये रे जब रिफ्रैक्ट होती है, ये एंगल हम ऐसे बनाते हैं सो दैट एंगल दिखाई दे आपको, और जब ये रे रिफ्रैक्ट होती है तो हम यहाँ पे एंगल बनाते हैं रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हमने एम बोल दिया। सो यहाँ पे जो स्नेल्स लॉ है उसका फॉर्मूलाज क्या होंगे, अगर इसको बोलते हैं पॉइंट ए और इसको बोलते हैं पॉइंट बी, तो ए पॉइंट के लिए फॉर पॉइंट ए जो स्नेल्स लॉ का रिलेशन होगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और साइन ऑफ जो एंगल एयर के अंदर बने यानी कि एक्स, साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू
ग्लास के अंदर गई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ जो वहां पे एंगल बना है साइन ऑफ वाई। अभी सेम अगर पॉइंट बी के लिए हम करें, फॉर पॉइंट बी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ जेड इक्वल टू होगा, एयर के अंदर वापस चली गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ एम। और अगर आप यहां पे थोड़ी बेसिक ज्योमेट्री लगाओ जो आपने अभी आप कर चुके होंगे, तो ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि z जो एंगल z है वो एंगल y के इक्वल होगा, एंगल z एंगल y के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे देखिए एनजी साइन वाई, एनजी साइन जेड, और आपको पता है y और z इक्वल है, तो ये दोनों टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये टर्म और ये टर्म दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हो दैट एन ए साइन एक्स इज इक्वल टू एन ए साइन एम, और एन ए दोनों में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एम मीन्स एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एम, मीन्स जो ये वाली रे है और ये वाली रे है ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बेसिक्स को हमने कवर कर लिया है, और एक जो हमने करेक्शन करनी है दैट इज कि हमने यहाँ पीछे इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दिया था, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिस इज नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको यस यहाँ पे भी करेक्ट करना पड़ेगा। So this is not angle of refraction, this is angle of refraction। यहाँ पे हमने सही शो किया है इसको, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अलावा यहाँ पे भी सही शो किया है। सो दैट्स इट आई थिंक, इसके अलावा हमने कहीं और मिस्टेक नहीं की है। तो अगर आप इससे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नोट्स में ये अपना करेक्शन कर लीजिएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, नोट दिस वन। सो दिस कवर्स स्नेल्स लॉ। अभी हम रिफ्रैक्शन के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, जस्ट बेसिक एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। सो पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज। जब भी लाइट कभी कहीं पे बारिश हो रही हो और वहां पे लाइट आने की वजह से जो सन ड्रॉप्स हैं, सॉरी वाटर ड्रॉप्स हैं, वो क्या करती हैं, वाटर को रिफ्रैक्ट करती हैं, और वाटर के रिफ्रैक्शन होने की वजह से वाटर का डिस्पर्शन होता है और हमें रेनबो के कलर्स बने हुए दिखाई देते हैं। और रिफ्रैक्शन की एक और दूसरी एप्लीकेशन होती है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उस केस में क्या होता है कि जो हमने ये पढ़ा यहां पे, अगर आप ये एक्स एंगल को इंक्रीज करते जाओ तो आपकी जो ये लाइट है ये फर्दर इस साइड मूव करने लग जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक्स को कितना बढ़ा दोगे कि लाइट वापस मीडियम में ही जंप कर जाएगी, मींस लाइट एंटर नहीं करेगी इस मीडियम के अंदर। तो आप बोलोगे इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है,
तो इसकी एप्लीकेशन होती है ऑप्टिकल फाइबर में। जो आपके घरों तक इंटरनेट आता है या जिस इंटरनेट की हेल्प से आप वीडियो देख रहे हो, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो वहां पे क्या बनाया जाता है, ऐसे ग्लास ट्यूब्स बनती हैं। और ग्लास ट्यूब में क्या होता है, लाइट को एक ऐसे एंगल पे भेजा जाता है कि लाइट क्रॉस नहीं करती, उसको वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहती है, और लाइट ऐसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एक पाइप के थ्रू पहुंच जाती है, जो कि एक रिफ्रैक्शन का ही एक मींस रिफ्रैक्शन की एक फर्दर एप्लीकेशन है, जहां पे आप एंगल को इतना बढ़ा देते हो कि रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। उसके बाद होता है स्पार्कलिंग और डायमंड। जो डायमंड्स होते हैं, जो स्पार्कल होते हैं, वो भी इसी फिनोमेना की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्रैक्शन के ऊपर ही बेस करता है। सो ये कुछ बेसिक डे टू डे एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन की। और जो इससे भी बड़ी एप्लीकेशन है वो आप अपने उसमें नॉर्मल लाइफ में देखते हो, दैट इज अगर आप स्पेक्स यूज करते हो तो आपके स्पेक्स के अंदर भी रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, जो कि हम लेंसेज में पढ़ेंगे। इससे आगे का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी लेंसेज, और वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन से क्या होता है वो हम आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन की हेल्प से लेंस लाइट को फोकस कर पाते हैं। सो टिल देन, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई हो, तो प्लीज़ कंसीडर लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देयर कैन बी अदर पीपल जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बिकॉज आपके शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है दैट वी आर मेकिंग समथिंग यूजफुल फॉर यू एंड अदर पीपल लाइक यू। एंड जितना हमारा मोटिवेशन होगा उतने ही हम ऐसे वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। सो प्लीज़ कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।